So today we'll start with a last unit of our computer programming CP, that is the sixth unit, user defined function, pointers and file management, right? So the content of sixth unit are functions, means definition of function, need for a user defined function, यानी इसके पहले जो हमने function देखे that are system related or system defined one, which is also called as a fundamental function or library function also हम उसको बोल सकते हैं. But there is a need of a user defined function, correct? So then there is a multifunction program, then elements of a user defined function, return values and their types, function calls, function declaration, then categories of a function, and here function part ends. Then second part that will start with a pointer, which we have discussed yesterday little bit, definition and uses of a pointer, accessing the address of variable, then introduction to the file management, in which defining and opening file. So file concepts that are completely related with your any file, like if you are downloading any we can say that exe file as in a software, if you are downloading apk file किसकी रहती है? Anyone? apk file? एप्लीकेशन फाइल. एप्लीकेशन फाइल मीन्स ये जो हमारे मोबाइल में हम एप्स डाउनलोड करते हैं उसकी एपीके फाइल रहती है. जैसे पिछले बार वो कोई तो भी गेम एक बैन हो गया था, बट लोगों के पास एपीके फाइल होने की वजह से वो बहुत से लोगों के मोबाइल में अभी भी है. वो चाइना का कोई तो भी गेम था ना, वो बैन कर दिया गया था इंडिया ने, ठीक है. सो फ्री देयर, फायर. हाँ ये उसकी लिस्ट है एक्चुअली 105 के 110 कुछ तो भी अलग अलग प्रकार के गेम्स है. उसमें भी एक बहुत बड़ा गेम था जो बहुत लोग खेलते थे, पबजी 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 पबजी. पबजी एग्जैक्टली पबजी. तो वो बैन हो गया. फिर उसके बाद उसकी एपीके लोगों के पास थी, बट एपीके होने से कोई मतलब नहीं है, उसके अपडेट्स आने चाहिए. अपडेट अगर नहीं आते तो वो ओल्ड वर्जन हम खेल खेल के भी कितना खेलेंगे, वो एक फिर कुछ दिनों के बाद बोर हो जाता. सो बिकॉज ऑफ दैट एपीके इज नॉट देयर and existing apk is not available in our country, they ban it. So that files are there, how that files can be accessed, even if pdf, then word file, excel file, then ppt, pptx, that all are comes under the head of various categories of files, that defining the files and opening the file, closing, then input output operations on a file, which kind of operation that we can perform on a file. Okay, so these are the three topics that we will cover under the head of a sixth unit, that is what functions, pointers and file management, right? Now starting with the definition. Now when we say that the function, so function is just what, जैसे हम एक normally हम हमारे अराउंड आजू बाजू में भी देखते हैं, if there is any jayanti, punyatithi or any function means any festivals is there, so few peoples that gathered and perform the some action, right? Some procedures which are old, which are some of the news, ठीक है. जैसे अभी एक न्यू प्रोसीजर आई है कि बर्थडे अगर रहता है, सेलिब्रेशन अगर रहता है बर्थडे का, तो कंपल्सरीली 3 या 4 केक लगते हैं. जनरली पहले ऐसा होता था कि एक ही केक इज सफिशिएंट, और हर कोई उस पर्टिकुलर केक में कंट्रीब्यूट करता था, यानी कंट्रीब्यूट यानी कंज्यूम करता था. अभी ऐसा नहीं है. द वन केक विच वी हाउ टू ईट, दैट विल सेपरेट, दैट विल कट एट द एंड, बट उसके पहले 5-6 केक कम से कम इन्वेस्ट करने पड़ता है. मैं वेस्ट नहीं कहूँगा, इसलिए वेस्ट नहीं कहूँगा क्योंकि वो फूड का एक अपमान हो जाएगा. अन्न परम ब्रह्म हम बोलते हैं, तो इन दैट केस वी जस्ट हैव दैट प्रैक्टिस. ये प्रैक्टिस अब बढ़ती जा रही है. पहले एक केक रहता था, अब एक के 2 हो गए, 2 के 4 हो गए, 4 के 6 हो गए. अब कुछ कुछ जगहों पे तो ऐसा है कि बर्थडे कौन सा है, 10th है, 15th है, 18th है, 19th है, तो ऐसा भी चल रहा है. अब उतने केक चाहिए, तो उसमें से कुछ ही कंज्यूम किए जाते हैं, रेस्ट ऑफ द आर जस्ट टू पुट ऑन द अदर्स फेसेस, ठीक है. तो ये एक फंक्शन है, ये एक ट्रेडिशन बन गया है, ठीक है. सो व्हेन वी हैव अ गैदरिंग ऑफ अ group of people and that they perform some kind of things that we call as a function, but it is not a regular basis. हर कोई हर रोज अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करता कि चलो ठीक है मैं आज
एक समझो 18 साल 2 दिन का हो गया, 18 साल 3 दिन का हो गया, 18 साल 4 दिन का हो गया, तो हर कोई डेली सेलिब्रेट नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज ये एक फंक्शन नहीं है, डेली सेलिब्रेशन इज नॉट द फंक्शन, ठीक है। बट अगर इफ यू सॉ सम मोटिवेशनल वीडियोस, यू कैन सी एवरी मॉर्निंग यू जस्ट हैव टू सेलिब्रेट बिकॉज यू आर अलाइव, आप जिंदा हो। ये बहुत खुशी की बात है, बट वी इग्नोर इट, ठीक है। कि एवरी मॉर्निंग दैट वी आर अलाइव एंड एवरी नाइट वी आर थिंकिंग दैट वी विल बी अलाइव टुमारो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बताते हैं वो कुछ अलग चीज़ है। बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंप्यूटर रिलेटेड फंक्शन, नाउ इट इज़ व्हाट एग्जैक्टली that we use the function in every program, like main function, printf function, scanf function. These are what are library functions, or these are what are fundamental functions. But sometimes we need to perform some other actions repeatedly. कुछ ऐसे एक्शंस रहते हैं कि जो हमको रिपीटेडली करनी पड़ती है, कि जैसे हमको बहुत सारे नंबर्स का अगर स्क्वायर रूट निकालना है, या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जिसमें आपको कुछ लॉगरिथमिक वैल्यूज निकालनी है, या फिर कुछ इंटीग्रेशन के रिलेटेड वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। कुछ डेरिवेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। So in that case, some of the functions which are treated as a library function, like sqrt, cos, then sine, cosine, tan, then strcat, strcmp, str ncmp. These are some of the library functions that we have. But few functions that we want to use repeatedly, instead of repeatedly writing that function, we can write it at once. हम एक ही बार उस फंक्शन को उस प्रोग्राम में डिफाइन करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। एंड whenever it is required, we can call that function as much as time. जितने बार भी आपको उसको कॉल करना है, आप उसको कॉल कर सकते हो, राइट। तो जैसे हम कोई भी चीज़ परचेस करके लाते हैं रिगार्डिंग टू एनी स्पोर्ट के रिलेटेड, जैसे हम फुटबॉल है, या फिर बास्केटबॉल है, हॉकी है, ठीक है, या फिर क्रिकेट है, ये जो स्पोर्ट्स है उसके रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हम लाते हैं, ठीक है, वो वंस लाते हैं, एक ही बार लाते हैं, ठीक है। हर बार जब हमको खेलने की इच्छा होती है तब हर बार नई चीज़ नहीं लाते हम, बिकॉज वॉट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. That is what a reusability of that particular गुड्स। जो भी गुड्स हम लाते हैं क्रिकेट के रिलेटेड या फिर स्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो हम बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग, इफ़ यू डू द वन फंक्शन एट अ वन, एक बार हमने अगर उसको डिक्लेयर कर दिया, एक बार अगर उसको आप डिफाइन कर देते हो मेन क्लास के अंदर, it will not reuse again, because the scope of that function will be limited to the main class itself. Opening and closing brackets के अंदर ही उसका scope रहेगा, उसके अलावा वो execute नहीं होगा. So there is a part that we are study here, that how function is designed, how function is integrated into the program, how two or more functions are put together, and how they can communicate with each other to exchange the data, or to depend, or to solve the queries related in between these two functions, or multiple functions we can also say. Like if you want to perform addition, subtraction, or division or multiplication, we can directly use the operator. Which operator? Anyone? Am I audible? Yes, sir. Okay. So which operator that we can use for performing addition, multiplication, subtraction, division, modulus? Arithmetic operator. Arithmetic operator that we can use, correct. Their definition is already defined in a standard input output header file, correct. But when we want to perform a complex operation, in that case we have to define their rules and regulation. अगर हम complex कोई भी operation perform करते हैं, like simplest में भी हम देख सकते हैं कि area of a triangle, area of a circle, area of a rectangle, area of a और perimeter of a सर्कल, ये जो चीज़ें हैं हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये ऑलरेडी सी में डिफाइन नहीं है विथ अ लाइब्रेरी फंक्शन. फॉर दैट वी हैव टू डिज़ाइन एंड डेवलप अ न्यू फंक्शन, ठीक है. उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ नया फंक्शन बनाते हैं, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट एग्जैक्टली द नीड ऑफ अ फंक्शन दैट वी विल सी.
So everyone understood what is the definition of a function? What exactly the function does? Function will solve the problem that if you want to use a repeated action, if you want to perform a repeated work, so instead of that repeatedly writing the same thing, write a once before the main class, declare the function as a global and use that function wherever it is required. ठीक है, तो ये भी चीज़ें हमारे यहाँ पे हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. जैसे अभी समर चल रहा है तो समर में बहुत से लोग कूलर परचेस करते हैं. तो क्या हर समर में हर कोई नया कूलर परचेस करता है क्या? No, sir. Certainly not, because it is a reusable. करेक्ट. एक समर में अगर आपने उसको यूज कर लिया, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसकी जो आउटर फेंसिंग है, इसको हम ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उड़ूल जो रहता है ना, तो वो में भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, उसमें कम हो सकता है. दैट वी कैन रिफिल. हम मार्केट से अगर वो अगर लेके आते हैं तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से और ठंडी हवा आ सके. ठीक है, दैट वी कैन डू. अगर मोटर खराब होगी तो वो चेंज कर देते हैं हम, बटन खराब होगी वो चेंज कर देते, वायर खराब होगी, वायरिंग खराब होगी वो चेंज कर देते. ठीक है, बट जब तक कि वो जो बॉडी है, मेटल बॉडी, वो कम्प्लीटली डिग्रेडेड नहीं हो जाती, एकदम यानी बिल्कुल कुछ काम नहीं करेगी, ऐसी जब पोजीशन नहीं आती, तब तक कि हम उसको रिप्लेस नहीं करते. दैट मीन्स फंक्शनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड, दैट मीन्स कूलर गुड्स यानी तो दैट आइटम दैट इज ड्यूरेबिलिटी एंड reusability is much more. So similarly, same concept is implemented in case of a user defined function. Now in that case we can see, so when we are having a main function, especially it is a system defined, or it is we can say that library functions, and which is required everywhere in every program that we require the main function. Correct. So it leads to the number of problems. Now which kind of problems? The problem is, if we are writing any user defined function without their original definition, because user defined function तो ये सिस्टम में नहीं है, इनबिल्ट नहीं है, और हम डायरेक्टली अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करना चाहते हैं, लाइक प्रिंट द एरिया, और एरिया किसका निकालना है ये बताया नहीं, हमने डिफाइन किया ही नहीं, इनिशियलाइज किया नहीं, इन दैट केस द मेन फंक्शन विल नॉट रिकॉग्नाइज इट and thus it will generate the number of errors. Errors is nothing but the problems. So that problem can be minimized with the help of user defined function and their definition. The program may become too large and complex as a result of a task debugging, testing and maintaining becomes difficult. जैसे अभी हम प्रोग्राम लिखते हैं, जनरली एक पेज का रहता है, जब आप स्क्रीनशॉट निकालते हो और भेजते हो सीपी डिस्कशन ग्रुप पे, तो इट प्रोबेबली 1 पेज प्रोग्राम. बट अगर वही प्रोग्राम अगर इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, फॉर लूप, ऐसे अगर अलग अलग चीज़ें अगर हम लगाते जाते हैं, इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, सो द लेंथ ऑफ प्रोग्राम दैट इंक्रीजेस. जनरली अब तक के हमने जो प्रोग्रामिंग किए, दैट आर हैविंग अ मैक्सिमम 30 लाइन्स. लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 जो रहते हैं ना, दैट आर लाइन्स, मैक्सिमम 30 लाइन्स, 45 लाइन्स, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट ऑफ. अगर 100 लाइन्स, 200 लाइन्स, 500 लाइन्स, 1000 लाइन्स का अगर प्रोग्राम है, in that case it is very difficult to debug, test even if and maintain. Maintenance भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because if you develop a software, their regular updates should be there. आपको अपडेट्स आते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, एप्लीकेशन अपडेट्स आते हैं, जिसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐड होती है, so that you use the particular application. If it is remains constant, अगर वो वैसे कि वैसे ही रहता है, जैसे किसी ज़माने में फेसबुक के पहले ऑर्कुट नाम का एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था. एनीवन हर्ड दैट नेम? देखा तो नहीं होगा किसी ने, फॉर श्योर. ऑर्कुट नाम का एक प्लेटफॉर्म रहता था जो एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी, बट अभी नहीं है, पूरी तरह से गायब हो गया. ठीक है, इफ़ यू सी द विकीपीडिया, you can see that Orkut was there, and before that Facebook, it was a good platform to communicate and to send the friend request, to join the friends, to interact with each other. That Orkut will give the access of video calling first. उसने सबसे पहले वीडियो कॉलिंग और चैट का ऑप्शन प्रोवाइड किया था, बट लेटर ऑन सम ऑफ द इश्यूज आर देयर, जस्ट लाइक अ नोकिया, they are not upgraded, and just because of that they stop
in the race of a social networking, but Facebook is still there. अब जब Facebook को पता चला कि Facebook Messenger is not used that much, rather than people are using WhatsApp, so what Facebook does, क्या किया Facebook ने? व्हाट्सएप को खरीद लिया। WhatsApp को खरीद लिया, सीधी बात। यानी चतुर का जो दिमाग था 3 इडियट का, उसी प्रकार के, खुद पढ़ाई नहीं करते हो तो दूसरों को भी नहीं करने देंगे, ठीक है। तो उसने उसका अगर वो चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था WhatsApp, ये देखा नहीं गया तो उसको खरीद लिया। फिर इंस्टाग्राम देखा कि वो इंस्टाग्राम भी बहुत अच्छे से चल रहा है, उसको भी खरीद लिया। अब ट्विटर वाला बेचने के लिए तैयार नहीं तो वो उसको भी खरीदने के लिए तैयार है। उसमें भी लिखा लिख आएगा पावर्ड बाय फेसबुक। जैसे इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो नीचे लिख के आता है, व्हाट्सअप ओपन करते हो फर्स्ट टाइम तो नीचे उसमें लिख के आता है फेसबुक। और बीच में ऐसे कुछ न्यूज़ भी आई थी कि व्हाट्सअप की कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से अब वो डेटा फेसबुक पे वो एक्सेस करेगा, आपका डेटा, व्हाट्सअप का डेटा, ठीक है। ऐसा कुछ बीच में आया ही था। सो द थिंग इज डिबगिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, इफ़ यू वांट अ हैजल फ्री, डिफिकल्टी नहीं चाहिए उसमें आपको, in that case definitely we have to use a user defined function. If the program is divided into the functional part, then each part may be independently coded and later combined into a single unit. That is what a divide the work into the chunks and a small pieces, ठीक है। जनरली आप कोई भी सब्जी लाते हो मार्केट से, गोभी अगर लाई, गोभी आधे किलो की, तो फिर हम उसको जैसी लाई है वैसे ही धो के कंज्यूम करना चालू कर देते क्या? करता है कोई ऐसा? नो सर। आलू लाया, नो सर। आलू लाया, अच्छा दिख रहा है, जिसको आलू पसंद है, बहुत अच्छा दिख रहा है, उसको धो डाला, उबाल लिया और जितनी उसकी साइज है उतना पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया, हो जाएगा? नहीं। नो सर। विल डिवाइड इट इनटू द स्मॉल पीसेस, देन वी कुक इट एंड देन वी कंज्यूम इट विथ अ स्मॉल बाइट्स, ठीक है। उसमें भी ऐसा कभी नहीं कोई करता कि एक पूरी रोटी है तो चलो ठीक है उसके ऊपर सब सब्जी डाल दी एंड इन अ वन स्ट्रोक इट विल कंज्यूम। यानी ऐसा अगर हो गया तो कोई अगर 4 या 5 रोटी अगर खाता होगा तो 5 निवाले जो है दैट्स इट। तो ये तो हो गया थोड़ा सा राक्षसी वृत्ति जो रहती है, जिनका इतना बड़ा डाइट रहता है, ऐसे लोग जो पौराणिक कथाओं में हमने सुने थे, वो हो सकते हैं, ठीक है। बट वी द ह्यूमंस, बीइंग एज अ ह्यूमन, डिसेंट ह्यूमन, उसमें भी डायरेक्ट यानी ऐसा नहीं कि वो जो बोलते ना स्पून और उसको क्या बोलते हैं, फोर्क एंड स्पून से खाना, ऐसा नहीं, बट वी कंज्यूम स्मॉल बाइट्स सो दैट इट विल बी डाइजेस्ट बाय आवर स्टमक, करेक्ट। सो यहाँ पे भी वही चीज़ होती है कि इतना सारा बड़ा प्रोग्राम अगर आप एक साथ सिस्टम को दे दोगे कि चल ठीक है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि सच में तू थकता है कि नहीं है, सिस्टम हैज़ नो फटीक, तो हम दे देंगे उसको, आज तेरी टेस्टिंग कर ही लेते हैं। फटीक नहीं आता है तेरे को, ले भाई फिर 10,000 लाइन का कोड कर उसको डिबग करना है, मेंटेनेंस करना है, क्या करना है, टेस्ट करना है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द प्रोग्रामर ऑल्सो ऑन द अदर हैंड, कि उसमें अगर एरर आती है तो वो एरर कौन से लाइन पे है, उसका किसके साथ क्या रिलेशन है, कहाँ से डेटा आपको फेच करना है, ये सारी डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा वहाँ पे रेज होती है। इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव अ इंडिपेंडेंटली कोडेड प्रोग्राम्स दैट इज नथिंग बट द सब प्रोग्राम दैट आर। सर हाँ यस सर, जैसे हमने मतलब ऑनलाइन जीडीबी पे या सी कोडिंग ऐप पे भी जैसे कंपैरिजन किया था प्रोग्राम्स का, यस तो वो हमको बता था कि एरर कहाँ पे है, हाँ एरर एक्सपेक्टेड। हाँ तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है क्या कि जो डायरेक्टली मतलब अगर कोई एरर होगी तो खुद ब खुद वो एरर को ये करके मतलब सॉल्व करके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर देगा? yes we are working on it. We means with the human being as a researcher on the basis of AI and ML, artificial intelligence with machine learning. तो मशीन लर्निंग में ये चीज़ें हो रही है कि जैसे आप अगर कोडिंग करते हो तो आप सिर्फ एक टाइटल स्टेटमेंट दे दीजिए कि आई वांट टू डू दिस, लाइक ये जो आपका ओके गूगल है, बाद में सीरी है, बाद में एलेक्सा है, उसमें हम जो क्वेरी देते हैं ओरली, वी आर गिविंग द क्वेरी एज एन ओरली, प्ले द सॉन्ग, कोई भी एक सॉन्ग हम उसको बोलते हैं तो वो प्ले कर देता है, ठीक है। सो लाइकवाइज, और प्ले द मूवी, प्ले दिस, करेक्ट।
even if your computer is also computer, or we can say that your television set is also enabled with a Wi-Fi, and because of that it can accept the voice commands. ठीक है, तो it will work on it. But if I want to perform a simple addition of two numbers, or matrix calculation, और derivation, और integration, और Fourier transform, और Laplace transform, ये अगर प्रोग्राम्स मुझे करने, तो मैं अगर ये कमांड अगर दे दूँ, तो उस कमांड के रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होगा वो उसने फेच करना चाहिए. वो आइदर कहीं पे ना कहीं पे गूगल पे स्टोर होगा, बट वो उसने फेच करना चाहिए. ये एक चीज़. दूसरी एक चीज़ जो आपने बोला कि मैं अगर कोई कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, लाइक विजुअल बेसिक, विजुअल स्टूडियो, नेटबीन्स, या फिर टर्बो सी, या फिर ऑनलाइन कोई भी कंपाइलर जीडीबी, तो उसमें भी वो अनेबल्ड होना चाहिए. इसके लिए रिसर्च चल रहा है, मशीन लर्निंग चल रही है, कि अगर मशीन को पहले से ये सारी चीज़ें हमने लर्न करा दी, ठीक है, देन मशीन कैन परफॉर्म इटसेल्फ. वो खुद के खुद वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगी. ठीक है, जैसे अभी आपको सिस्टम जनरेटेड मेल्स आते हैं, सिस्टम जनरेटेड कॉल्स भी आते हैं. जैसे अभी मुझे पॉपअप मैसेज आएगा क्विक हिल का कि आपका ट्रायल जो है 30 दिन का जो है, तो वो ख़त्म होते आ रहा है. तो वो 45 डेज से उन्होंने पॉपअप चालू कर दिया. इवन इफ रिचार्ज आपका ख़त्म होते आ रहा है, तो आपको टेक्स्ट मैसेज आने चालू हो जाते हैं. तो यहाँ पे कोई इंसान नहीं बैठा हुआ रहता है कि वो कंटिन्यूसली रात को 12 बजे आपको मैसेज भेजेगा कि भैया आपका रिचार्ज ख़त्म होने वाला है, वो रिचार्ज कर लो, अदरवाइज फैसिलिटी नहीं मिलेगी, इंटरनेट नहीं मिलेगा, कल क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे. तो ऐसा कुछ वो बताता नहीं. इट इज़ अ ट्रिगर्ड मैसेज. तो ये प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहे हो हम, बट आने वाले समय में मशीन खुद ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज करेगी, खुद होके डिसीजंस लेगी. तो डिसीजन पावर अभी फ़िलहाल रोबोटिक्स, जो आप देखते हो कि कोई भी अगर साइट पे हम जाते हैं, तो वहाँ पे वो जो बोलते हैं ना, आई एम नॉट अ रोबोट, वो फिर ये आते हैं, क्या आते हैं, रिकॉग्नाइज करने के लिए आते हैं कुछ पैचेस, ब्लॉक्स रिकॉग्नाइज करने के लिए आते हैं. क्रॉस वॉक है क्या, चिमनी है क्या, टू व्हीलर है क्या, फोर व्हीलर है क्या, कार है क्या वगैरह, एम्बुलेंस है क्या, ट्रक है क्या. तो ये हमको जो पूछते हैं ना, वो इसलिए पूछते हैं कि बहुत से रोबोट्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं, ऑलरेडी वो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. और ये जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं, वो भी रोबोट्स के थ्रू ही किए जा रहे हैं, बोट्स जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो वो अभी टेस्टिंग चल रहा है, बट पॉजिटिव साइड में कम, मशीन लर्निंग का पॉजिटिव साइड में कम, निगेटिव साइड में बहुत ज़्यादा चल रहा है, बिकॉज उसमें पैसा बहुत है, और जहाँ पैसा है वहाँ इंसान है. ठीक है, अभी आप देख रहे हो हेल्थ सेक्टर में अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है. तो एक 2-3 किलोमीटर के लिए अगर ट्रैवल करना है एम्बुलेंस के थ्रू पेशेंट के साथ, तो आपको 15-20 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द ह्यूमन टेंडेंसी वॉज देयर, कि अगर पैंडेमिक सिचुएशन है, फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अपनी जान दे देते हैं दूसरों के लिए, और कुछ ऐसे लोग हैं कि दूसरों की जान ले लेते हैं पैसे लेके. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हो रही है मशीन लर्निंग में. इसके ऊपर बहुत बहुत स्कोप है. अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसमें आज से ही पाइथन धीरे 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 सीख सकता है. पाइथन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है मशीन लर्निंग में, बट उसका पाइथन का भी बेस सी लैंग्वेज ही है फॉर श्योर. ठीक है, तो मेक श्योर दैट you should know the, or you should aware about the complete syntax of C language, and then we can switch to the Python, and then we can jump to the machine learning also, right? So these sub programs are there, and that are much easier to understand, debug and test, because block अलग अलग अगर है, तो उसमें से कौन से ब्लॉक में एरर आई. जैसे मैंने अभी कुछ 2-3 सेशन में जब मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए, तो मैंने हर एक स्टेटमेंट को एक्टिव किया और उसको एग्जीक्यूट किया. फिर दूसरे स्टेटमेंट को एक्टिव किया, तो पहले स्टेटमेंट को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया. ठीक है, जैसे अभी कल या परसों के लेक्चर में हमने जो प्रोग्रामिंग्स देखे थे 5th यूनिट में, तो उसमें मैं वो करता गया, क्योंकि एट अ टाइम 10 या 12 अगर सेंटेंस में थ्रो कर देता हूँ प्रिंटफ में, ठीक है, टू रीड द स्ट्रिंग, वेराइटी ऑफ अ स्ट्रिंग्स, उसमें हमने प्रेसिडेंस वैल्यू जो चेक किए थे, तो उस केस में मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये एग्जैक्ट किस लाइन पे एरर आई है और किसके वजह से. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई डू, I just comment all the statements, and only one statement will be active, and their output that I view, and I will check only that particular part, and which is a focused one. यहाँ पे हम फोकस टारगेटेड काम करते हैं. तो इसी प्रकार से अगर आप फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस डिज़ाइन करते हो, डेवलप करते हैं, देन यू कैन डू द फोकस्ड थिंग्स. अब इसमें एक डायग्राम है, उसमें एक अच्छे से उन्होंने कंसेप्ट डिफाइन करके दिया है 11.1. The diagram is having main program.
that means a void main, and having a multiple functions like function A, function B, function C. ठीक है, so this approach is considered as a top down approach. It is a top down modular programming, and which is a lower level, then upper level, then again top level. ठीक है, so the B1 and B2, these are what exactly the lower levels of a function B, which performs a little bit output or which gives the little bit, then it will club with a B1 and B2, दोनों club होंगे B function के लिए, and B function, A function and C function will combinedly join and will perform a output for the main function. So ये हायरार्की मेंटेन की जाती है. जैसे आप बीइंग एज अ ट्रेनी इंजीनियर लगते हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगते हो एमएनसी में कोई भी, तो आपको एक मॉड्यूल दिया जाता है, पूरा का पूरा आपको प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता, असाइन नहीं किया जाता. उस प्रोजेक्ट का एक छोटू सा मॉड्यूल, बहुत छोटा मॉड्यूल आपको दिया जाता है. एंड लाइक यू, many trainee engineers are there and they are performing very small modules, and that will be clubbed by their team in charge or team member, and then team lead will provide that to the then project manager, and then project manager will combine it, and that project will be completed within a 2 year or 3 year or 4 year. So that is what exactly the function is very important. User defined function is very important in order to categorize, in order to summarize the problem, in order to simplify the particular concept. कोई भी कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करना है, वो टॉप टू बॉटम अगर आप पूरा का पूरा लिख देते हो तो समझने के लिए भी डिफ़िकल्ट है, डिबग के लिए भी डिफ़िकल्ट है, टेस्टिंग के लिए भी डिफ़िकल्ट है. इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज द यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट. नाउ in that case there is a one example. It is a top down modular programming, we are using the function. There is an example of a multi function program. अब अलग अलग functions का use करके हम कैसे एक particular program डिज़ाइन कर सकते हैं, and for that C will allow you with the help of a stdio.h library or rest of the other libraries are we can use. A function is a self-contained block of a code that perform a particular task. जैसे हम एक फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं सिस्टम डिफाइन या फिर लाइब्रेरी फंक्शन printf. printf के बारे में आपको खुद बताना नहीं पड़ता. देन sqrt, स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, बाद में आपको अगर लॉगरिथमिक वैल्यूज निकालनी है, तो ये कुछ ऐसे फंक्शन है जो सेल्फ डिफाइन होते हैं. इट विल परफॉर्म देयर ओन, जब उनको आप कॉल करोगे वो परफॉर्म होते हैं. ठीक है, उनके साथ अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐड कर देते हैं, ठीक है, so they also behave like that. Once a function has been designed and packed, it can be treated as a black box. अब ये black box जो concept है थोड़ा एरोप्लेन में भी यूज होता है, पूरा थोड़ा है ना, पूरा यूज होता है. ब्लैक बॉक्स है वो कुछ तो भी कम्युनिकेशन टूल रहता है जिसमें सारी रिकॉर्डिंग्स रहती है, और जब भी कोई प्लेन क्रैश हो जाता है तो उसका ब्लैक बॉक्स और उसका डेटा जो रिकवरी रहता है उससे काफ़ी सारी चीज़ें डिकोड हो सकती है कि क्या हुआ था, एग्जैक्ट प्लेन कैसे क्रैश हुआ. तो जनरली ब्लैक बॉक्स जो रहता है दैट इज़ व्हाट अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड विच परफॉर्म्स रिपीटेड दैट पर्टिकुलर टास्क. सो दैट ब्लैक बॉक्स दैट टेक्स सम डेटा फ्रॉम द मेन प्रोग्राम एंड इट विल रिटर्न द वैल्यू. कुछ डेटा मेन प्रोग्राम से लेता है यानी फंक्शन, और उसकी वैल्यू आपको रिटर्न कर देता है. कि जैसे मुझे अगर एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है और मेरे पास करीब करीब 50 से 60 सर्कल्स हैं अलग अलग डायमेंशंस के, तो मैं क्या हर बार यूज़र को ये बोलूँगा क्या कि ये जो ए सर्कल है उसके डायमेंशन मुझे दो, फिर बी सर्कल के डायमेंशन दो, फिर सी सर्कल के डायमेंशन दो, फिर डी सर्कल के डायमेंशन दो. यूज़र तो फेडअप हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी डू, we will just put a message that give the dimensions of all the circles, जितने भी है 30 40 50, उसको मैं फंक्शन में ऐड करूँगा और वन बाय वन हर किसी डायमेंशंस के हिसाब से हर पर्टिकुलर सर्कल का मैं एरिया ऑफ सर्कल या फिर पेरीमीटर या फिर जो भी पैरामीटर्स उनको डिमांडेड है एज एन आउटपुट, वो मैं उनको फेच करके दे दूंगा बीइंग एज अ प्रोग्रामर. ठीक है, सो ये कंपाइल के लिए भी इजी रहेगा, डिबगिंग के लिए भी इजी रहेगा, टेस्टिंग के लिए भी. अगर कुछ एरर्स आती है देन इट इज़ इजी इफ़ यू आर यूजिंग द
function. The inner details of operations are invisible. अब इंटीरियर में फंक्शन में क्या होता है वो तो जनरली हमको, वैसे प्रोग्रामिंग में क्या होता है तो हमको इतना ही बताया गया है या फिर इतना ही पता है कि वी हैव अ प्रोग्राम, इट विल कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी फॉर्मेट एंड देन बाइनरी फॉर्मेट विल बी कन्वर्टेड back to the human understandable format. That is what exactly the exe will be made and exe will be executed. ठीक है, but internally there are the data bus, system bus, address bus. They will carry the data in between them, and the communication in between the primary memory and secondary memory will be took place with the help of these buses. There is a role of a memory management. So if the memory is available, then the exchange of a data will become faster. If the memory is not available, then your system gets frequently hanged. So ऐसे पूरे के पूरे जो concepts है that are mainly rely with a computer architecture and design. कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन एक सब्जेक्ट रहेगा आपको, CSIT, इवन इफ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी रह सकता है बिकॉज योर सिलेबस इज चेंज बिफोर 1 year. सो काव नाम का एक सब्जेक्ट रहता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन. इन दैट यू कैन सी दैट डिटेल एग्जीक्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर एनी कमांड. जो भी आप कमांड देते हो उसके रिलेटेड डिटेल आपको उसमें पता चल जाता है. बट प्राइमरी बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि बाइनरी कन्वर्शन होता है. ठीक है, human understandable language converted into the binary format, then again output will be generated with an input, then output will be taken as an binary format and it will convert back to the human understandable. This is the work of a compiler. ठीक है, interpreter और compiler ये काम करते हैं. ठीक है, then all the programs that know about a function is what goes in and what goes out. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना जनरली, आम खाओ, आम के पेड़ मत गिनो. ठीक है, जैसे ये बोला जाता है तो आम यानी आम कितने अच्छे हैं वो देखो आप, वो कहाँ से आए हैं, कौन से गांव से आए हैं, कौन से पेड़ से आए हैं, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती. ठीक है, सो व्हाट गोज इन, क्या जाता है फंक्शन में, इनपुट क्या जाता है वो देखो, और आउटपुट क्या आता है वो देखो. दैट्स इट. एवरी सी प्रोग्राम कैन बी डिजाइन यूजिंग अ कलेक्शन ऑफ दिस ब्लैक बॉक्सेस नोन एज अ फंक्शन. अब ये हम एक थोड़ा सा यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे एक प्रोग्राम के हेल्प के थ्रू. void print line void, this is what a name of the function. print line void is what, return type, और उसमें जो पैरामीटर पास किए जा रहे हैं that is also a void. ब्रैकेट में अगर कुछ भी लिखा है it is treated as a parameter. before the bracket there is a name of the function, and before the name of the function there is a return type of that particular function which is void. then integer I equal to 1, I less than 40, I plus plus, we are simply using a one for loop which will be repeat how many times? Anyone? ये जो for loop है ये कितने बार repeat होगा? Am I audible? Yes, sir. हाँ, ये for loop कितने बार repeat होगा, क्या लगता है आपको? I की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर दी है हमने. ठीक है, एंड I लेस देन 40 है. 39. Most probably it is a 39. Why? Because 1 less than 40 that is okay, but 40 less than 40 वहाँ पे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो 1 से लेके तो 39 तक ही वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, और प्रिंट क्या करना है उसको, डबल कोट्स में क्या दिया है, डैश नहीं है वो अंडरस्कोर है. Underscore. अंडरस्कोर उसको प्रिंट करना है. नाउ अबव सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और फंक्शन दैट वी कैन डिफाइन इनटू द वन प्रोग्राम. यहाँ पे हम एक प्रोग्राम देखेंगे. दिस वन. ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है. इज इट स्क्रीन विजिबल और शुड आई इंक्रीज द फॉन्ट? Perfect, sir. ओके, Yes, sir, visible है. so hash include stdio.h void print line void semicolon. ठीक है, now when we write anything before the main class तो उसको हम क्या बोलते हैं, it is a global declaration. And here we declare the function which can be used inside the
मेन फंक्शन, उसमें आप यूज कर सकते हो, बट उसको डिफाइन कहाँ पे करना पड़ेगा आपको, इन दैट बिफोर द मेन, आफ्टर द हेडर फाइल, ठीक है। देन वॉइड मेन, देन प्रिंट लाइन, फंक्शन को हमने कॉल किया है, दिस इज व्हाट अ कॉलिंग फंक्शन, हाँ कमेंट। then there is a one printf statement and then there is a again same calling function, ठीक है। now the definition of a function start from here, how the function or which kind of work that function does, that is a definition। ये definition में e missing है, ठीक है, कंट्रोल definition of a function, ठीक। तो यहाँ पे वही एज इट इज हम यूज करेंगे, दैट void is a return type, name of the function is print line and parameters that we will pass, that is a void, ठीक है। then we will define a one variable integer I, अब ये यहाँ पे यूज किया है तो इसको थोड़ा सा यहाँ, ठीक है, integer I, then that for loop, then print this underscore and then backslash n, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने ये ज़्यादा की दे दी है वो मैं निकाल देता, ठीक है, ये बाकी चीज़ें ठीक है, एंड वी विल रन इट, ठीक है। नाउ योर आउटपुट शुड बी लाइक दैट कि एक सेंटेंस है और वो सेंटेंस दो लाइन के बीच में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो दो लाइन्स हैं वो किसके वजह से आ रही है, कोई बता सकता है दिस टू लाइन्स, कौन ला रहा है उसको, एनीवन हु फेच दैट लाइन्स into the program, backslash n in the 14th line. no not at all, line means it is a underscore, it is a combination of various underscore, ये पूरे आउटपुट में, ये पूरे आउटपुट में एक चीज दो बार रिपीट हुई है, विच इज अ डार्क लाइन, एक अपर साइड में लाइन है, एक लोअर साइड में लाइन है। अब ये एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन है वो, बट उसको फॉर लूप लगाने की वजह से कॉन्जिक्यूटिवली प्रिंट होते गए, ठीक है, 39 टाइम्स, जिसकी वजह से आपको लाइन दिख रही है, ठीक है। तो अगर मुझे एक लाइन प्रिंट करनी है देन वी कैन यूज अ फॉर लूप एंड दैट्स इट, बट ऐसे अगर मल्टीपल लाइन्स मुझे यूज करनी है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कोड, ये जो कोड है मैं बार बार लिखूं, दैट इज नॉट गुड। मुझे अगर 10 लाइन्स लिखनी है, 10 लाइन्स प्रिंट करनी है, तो मुझे ये 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ कोड है प्रिंट लाइन, दैट आई हैव टू राइट इट डाउन 10 टाइम्स। इफ आई वांट 100 लाइन्स देन इट रिक्वायर्स 100 टाइम्स, अगेन सो ऑन, जितने बार चाहिए उतने बार। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई डू, आई विल डिफाइन इट एज अ सेपरेट पार्ट एज अ फंक्शन आउट ऑफ मेन के बाहर। हमेशा जो यूजर डिफाइन फंक्शन लिखते हैं हम, जैसे एक टाइम पे हमने पहले के दूसरे यूनिट में, शायद दूसरे तीसरे यूनिट में हमने एरिया ऑफ अ सर्कल के लिए एक फंक्शन लिखा था, याद आता है, यूजर डिफाइन फंक्शन लिखा था जिससे हमने एरिया ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट किया था। कुछ बच्चों ने प्रोग्राम भी भेजे थे उसके रिलेटेड करके सीपी डिस्कशन ग्रुप में। तो दैट एरिया ऑफ अ सर्कल, दैट एरिया एंड देयर फॉर्मूला इज डिफाइंड आउटसाइड ऑफ अ मेन फंक्शन, मेन क्लास के बाहर, हमने मेन फंक्शन के बाहर उसको डिफाइन किया था। अब मुझे क्या ज़रूरत है, सिर्फ इसको कॉल करने की ज़रूरत है। वंस आई कॉल इट, अ कंप्लीट प्रोग्राम और अ कंप्लीट फंक्शन विल बी एग्जीक्यूट। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके। सो प्रिंट लाइन मैंने दो बार यूज़ किया है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम ऑन लाइन नंबर 5 एंड सेकंड टाइम लाइन नंबर 7, एंड दस बिकॉज ऑफ दैट दिस complete 1 to 39 अंडरस्कोर विल बी प्रिंटेड एंड दैट बिकम्स अ कंप्लीट लाइन। ये सारे के सारे क्या अंडरस्कोर है, बट वो लाइन प्रिंट हो गए, ठीक है। वही अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये बराबर फॉर्मेट में नहीं आया है, बैकस्लैश टी बैकस्लैश टी बैकस्लैश टी, कैपिटल हो गए, बैकस्लैश टी बैकस्लैश टी बैकस्लैश टी, देन आई विल रन द प्रोग्राम। कुछ तो भी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, बैकस्लैश एन, देन रन द प्रोग्राम। नाउ इट विल लुक अ प्रॉपर आउटपुट, ठीक है। अब अगर मुझे और दो लाइंस चाहिए
तो मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे वाला कोड लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा, ये लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेम, Ctrl+C Ctrl+V, फिर से Ctrl+V, इन दोनों के बीच में मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट फिर से ले लूँगा, Ctrl+C Ctrl+V। करेक्ट। सर हाँ, यस, सर यू कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन, वो समझ में नहीं आया मेरे थोड़ा सा। ओके ओके। नाउ in a normal case if I want to print this line, ये जो लाइन है, एक लाइन, कोई भी एक लाइन अगर मुझे प्रिंट करनी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर, ठीक है, आई जस्ट हैव टू यूज अ फॉर लूप। एक बार मैं फॉर लूप यूज करूंगा और उसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। वही अगर मुझे वो सेम लाइन मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करनी है, इंस्टेड ऑफ दैट यूजिंग द सेम फॉर लूप मल्टीपल टाइम्स, ये तो समझ में आ गया कि भाई हमें अगर एक लाइन प्रिंट करनी है तो एक बार फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, और अगर ऐसे यस मल्टीपल सर। लाइंस यूज करनी है तो हमको नेस्टेड ऑफ फॉर लूप्स या फिर मल्टीपल फॉर लूप्स यूज करने पड़ेंगे। नेस्टिंग नहीं करना पड़ेगा, बट मल्टीपल फॉर लूप्स यूज करने पड़ेंगे, करेक्ट। अब उसमें मल्टीपल फॉर लूप्स अगर यूज कर रहे हो तो उसमें वेरिएबल्स भी लगेंगे, आई जे के एल एम एन। अब आई ही क्यों लेते हैं हम फॉर लूप में, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ मैंने कल कुछ प्रोग्राम किसी ने पोस्ट किए, आई गेस गोकुल ने, तो उसने सी एच लिया था एज अ फॉर लूप वेरिएबल, करेक्ट, करेक्ट गोकुल, आई गेस गोकुल इज नॉट देयर, ओके। सो सी एच वॉज देयर, उन्होंने काउंट किया था कि ऑकरेंस एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितने बार एक अल्फाबेट ऑकर होता है, ठीक है। सो दे यूज द सी एच, सो वी कैन यूज इट, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कोड अगेन, ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये बार बार मैं लिखूँ एक लाइन प्रिंट करने के लिए या फिर मल्टीपल लाइन्स प्रिंट करने के लिए, इंस्टेड ऑफ दैट यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या आपको फैसिलिटी देता है कि आप वो फंक्शन एक बार मेन क्लास के बाहर लिख दो, write down the definition of that function and call that function whenever it is required। यहाँ पे मैंने जितने भी बार प्रिंट लाइन फंक्शन यूज किया है, जैसे मैंने प्रिंट लाइन लिखा, कर्सर कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और उसके अंदर जो भी लिखा हुआ होगा डेफिनेशन उसकी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, करेक्ट। इट जस्ट लाइक दैट कि अगर मैं अभी आपको बोलता हूँ 7 5 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 मीन्स 7 5 तो इमीडिएटली आंसर आता है। कोई ये नहीं बोलता कि 7 + 7 + 7 + 7 + 7, हाँ ये आंसर है सर, ऐसा कोई नहीं करता, बिकॉज वी नो द टेबल्स, हमें टेबल्स पता है, इसलिए हम इजीली आंसर दे सकते हैं। एटलीस्ट 10 तक तो टेबल लगभग सभी को याद है, माइट बी 15 तक भी याद होंगे, 18 19 थोड़ा कन्फ्यूजन है कुछ कुछ जगहों पे, 22 के बाद मोस्टली हम टेबल्स याद नहीं रखते, वी विल हैव अ डायरेक्ट कैलकुलेटर और कैलकुलेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वी विल यूज, ठीक है। बट इफ समवन नो द टेबल्स टिल द 50, अगर कोई ऐसा अगर होगा जिसको मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको अगर टेबल्स 50 तक आते होंगे तो वो तो चुटकी बजाती है आपको आंसर दे देगा 26 × 48, ये आंसर एकदम फटाक से दे देगा वो। या फिर इसकी कुछ ट्रिक्स भी है, ऐसा नहीं है कि ट्रिक्स नहीं है, नॉर्मल पर्सन भी दे सकता है, जिसको मैंने मैथ्स यानी अच्छा लगता है वही इंसान दे सकता है, ऐसा नहीं, ठीक है। सो द केस इज इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रिंटिंग अ लाइन, एक लाइन प्रिंट करनी है, वो पार्ट मैं बार बार लिखूँ, so that I will get the 4 lines, 5 lines, 6 lines, 10 lines, 20 lines. Instead of that, what I do the one function, declare the one function and use the function as their name, उसको कॉल करूँगा सिर्फ मेन फंक्शन में मैं, और फिर उसके वजह से क्या हो जाएगा, वो फंक्शन बॉडी पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड विल गेट द आउटपुट लाइक दिस, ठीक है। इवन इफ इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन ऑल्सो पुट, यहाँ पे मैं एक और बीच में अगर printf यूज करता हूँ,
कुछ बताओ क्या लिखे। सी प्रोग्राम रन आ गया। थोड़ा सा इसको और साइड में कर देते हैं। नाउ इट लुक्स गुड। सैम्पल प्रोग्राम सी प्रोग्राम हाउ आर यू ऑल। ठीक है, अब समझ में आया हम फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं। यस सर। ओके, Yes, sir. anyone any doubt? No, sir. What is the role of function? No, sir. Then how we can use it? Okay, हाँ, so this is what exactly the मल्टी फंक्शन। ये हमने जो देखा था ये मल्टी फंक्शन का एक प्रोग्राम था जिसमें आपने एक प्रिंट लाइन नाम का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन भी लिया, जिसके अंदर printf नाम का एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन भी था। ठीक है, अब ये दोनों का यूज़ करके हमने क्या किया है, यहाँ पे एक प्रोग्राम, यहाँ पे इन्होंने ऐसा आउटपुट दिखाया है। एक्चुअली इनकी जो बैकस्लैश है अंडरस्कोर जो है ना उसमें थोड़ा सा सेपरेशन है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, बट हमारे इसमें हमारा जो प्रोग्राम है वो परफेक्ट लाइन दिखता है, ऐसा लगता है कि हमने लाइन ड्रॉ की। ठीक है, जैसे कल किसी ने पूछा था कि मैं हेलो वर्ल्ड ये हम लिख सकते हैं क्या सी में। ठीक है, यस वी कैन राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक फंक्शन डिफाइन करके रख सकते हो आप, और उसको अगर कॉल करोगे तो उस हिसाब से वो वर्क करता जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा और डीप प्रोग्रामिंग का पार्ट है। विल स्टॉप ऑन दैट पर्टिकुलर, विल मूव फर्दर। ठीक है, हम यहाँ पे और आगे जाएंगे कि एक प्रिंट लाइन फंक्शन वर्क कैसे होता है। वही मैंने एक ओरली बताया था कि यहाँ पे मेन फंक्शन, उसके अंदर आपने फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 1 ये कॉल किए हैं, सिर्फ उसको बुलाया है। ठीक है, यहाँ पे बुलाने के बाद आता है वो। ठीक है, वो चीज़ जो है ना वो जो वायरल हुई थी बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो अलग चीज़ है। दिस वन इज व्हाट, फंक्शन 1। इफ यू कॉल द फंक्शन 1 इट विल इमीडिएटली कम एंड एग्जीक्यूट व्हाट कम, इट कम्स दैट ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है, ये जो पूरा ब्लॉक है फंक्शन 1 का, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होता है एंड वो क्या करता है आपका रिजल्ट पब्लिश कर देता है अगर उसमें प्रिंटफ स्टेटमेंट है तो। इफ यू आर यूजिंग द फंक्शन 2 देन फंक्शन 2 ब्लॉक विल बी इनटू द मेन मेमोरी और मेन क्लास मेन फंक्शन में आ जाएगा एंड इट विल एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। ठीक है, अब उसमें भी ऐसा हो सकता है कि फंक्शन विद इन अ फंक्शन, ये भी चीज़ कर सकते हो आप कि एक फंक्शन को अगर कॉल किया गया तो उस कॉल के वो जिस जो डेफिनेशन लिखी है फंक्शन की उसके अंदर एक और एक फंक्शन है, फिर उसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसकी डेफिनेशन पे जाएगा, वो वहाँ से डेटा फेच करेगा, फिर वो फंक्शन प्रीवियस फंक्शन को रिटर्न करेगा। ठीक है, सो दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल, मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ अ फंक्शन ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, दैट वी कैन ऑल्सो डू, करेक्ट। The next topic is modular programming. Yeah, actually modular programming is just what exactly, if we have a big project or if we have a big consignment that we have to complete, just like आधार कार्ड का डेटा आपको मेंटेन करना है। आधार कार्ड यूजर्स कितने हैं, 150 करोड़ के आसपास। ठीक है, क्योंकि अभी 2011 में सेंसेक्स यानी पॉपुलेशन काउंटिंग हुआ था, बट 2021 में पॉपुलेशन काउंट हुआ नहीं, तो हम अभी कंसिडर कर सकते हैं कि वी आर अबव 140 करोड़ पीपल, मीन्स सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर 140 करोड़ लोगों का अगर डेटा मेंटेन करना है आपको, डेफिनेटली वी हैव टू डिवाइड दैट डेटा इनटू द मॉड्यूल्स लाइक 0 to 5 ईयर। देन 0 to 5 ईयर मीन्स उनका आधार कार्ड जनरेट नहीं होता, 1 to 5 हम कंसिडर कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट मंथ टू द 5 ईयर, दैट विल बी द वन कैटेगरी। देन 5 to 10 ईयर, 10 to 18 ईयर, 18 year to probably 35 year, 35 year to probably 58 year because रिटायरमेंट वगैरह का एज 58 रहता है, एंड अबव 60 सीनियर सिटीजन। ऐसे कुछ हम कैटेगरीज बना सकते हैं, उनका डेटा हम क्लब कर सकते हैं, फंक्शंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ वन यूनिट, दैट इज व्हाट अ मॉड्यूल। छोटा छोटे जो मॉड्यूल्स रहते हैं उसके ऊपर हम पहले काम करेंगे, उसको पहले कंप्लीट करेंगे, देन वी विल स्विच टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। एंड
all these modules are connected with each other after all modules are built up and tested. सारे के सारे मॉड्यूल्स जब बन जाते हैं उसके बाद उनको क्लब किया जाता है और फिर उसके ऊपर टेस्टिंग ऑलरेडी हुई रहती है एंड देन इट विल बी कंप्लीट प्रोजेक्ट. ये एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनता है. ठीक है, जैसे अभी कोविन gov.in, इसके अगर शुरुआत में अगर आप देखते थे तो उसमें सिर्फ पिन नंबर और सिटी के थ्रू आप सेंटर सर्च कर सकते थे. बट राइट नाउ वी आर हैविंग सम टैब्स जिसमें फ्री, पेड, कोवैक्सीन, कोविडशील्ड, बाद में 18+ 45+ के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ वॉट नथिंग बट द मॉड्यूल्स. देर आर सेवरल मॉड्यूल्स एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन डू द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग दैट ईच मॉड्यूल शुड बी ओनली डू वन थिंग. एक मॉड्यूल एक ही चीज़ करेगा, एक ही टास्क परफॉर्म करेगा. कम्युनिकेशन बिटवीन द मॉड्यूल इज अलाउड ओनली बाय कॉलिंग द मॉड्यूल. यानी एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, then definitely they have to call that particular module. Then a module can be called by one and only one higher module. यानी छोटा मॉड्यूल बड़े मॉड्यूल को कॉल नहीं कर सकता, बट बड़ा मॉड्यूल छोटे मॉड्यूल को कॉल कर सकता है. ठीक है, जैसे अगर एक इसका छोटा एग्जांपल अगर देखते हैं तो जो हमारे घर पे जो सबसे छोटे रहते हैं तो जनरली मेहमान अगर आए तो उनको ही बोला जाता है लाओ पानी लाओ, चाय लाओ, नाश्ता लाओ. ठीक है, जो बड़े होते हैं वही ये बताते हैं. ठीक है, तो यू मे हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ इट कि अगर आप बड़े होंगे तो आप ऑर्डर छोड़ते होंगे अपने छोटों पे, अगर आप छोटे होंगे तो वी विल लिसन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर. उसमें झगड़ा भी होता है बहुत बार कि मैं नहीं करूँगा, हमेशा वाई मी ऑलवेज. ठीक है, तो ये चीज़ उसमें होती है. बट हियर इन दिस केस द हायर मॉड्यूल विल ऑलवेज कॉल बाय द, और कॉल किया जाता है, हायर मॉड्यूल विल कॉल टू द लोअर मॉड्यूल and it is not vice versa. No communication can be take place directly between the modules and that do not have a called relationship. ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है बट जब ज़रूरत पड़ती है देन दे कैन कॉल. डायरेक्ट कम्युनिकेशन उसमें एस्टेब्लिश नहीं हो सकती है. ऑल मॉड्यूल्स आर डिजाइन एज ए सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिस्ट सिस्टम्स यूजिंग अ कंट्रोल स्ट्रक्चर. यानी यहाँ आ तो सकते हो, काम भी कर सकते हो मॉड्यूल में, बट अगर बाहर चले गए तो फिर से वापस नहीं आ सकते. इन दैट केस वी हैव टू आस्क फॉर अनदर मॉड्यूल टू डू द पर्टिकुलर वर्क. राइट, देन वी विल स्विच टू द एलिमेंट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन. ठीक है, दीज आर द वेरी शॉर्ट टॉपिक्स. फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डिक्लेरेशन, दीज आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, जैसे हमने इस प्रोग्राम में देखिए, दिस वन इज द फंक्शन डेफिनेशन. ये जो हमने देखा है यहाँ पे, इज इट विजिबल? यस सर. void, Yes, sir. यस, void, प्रिंट लाइन void, और उसके नीचे जो भी हमने चीजें लिखी है दैट इज व्हाट अ फंक्शन डेफिनेशन. वेयर एज फंक्शन कॉल, दिस वन इज द फंक्शन कॉल, कॉलिंग अ फंक्शन जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, फंक्शन कॉल. इसको आप और क्या बोल सकते हैं? फंक्शन कॉल. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन कॉल. एंड थर्ड थिंग इज फंक्शन डिक्लेरेशन. सो फंक्शन डिक्लेरेशन शुड बी बिफोर द मेन क्लास. ठीक है, या फिर मेन क्लास के नीचे भी लिख सकते हो आप. ऐसा नहीं है कि भाई मेन क्लास के ऊपर ही लिखना पड़ेगा, बट मेन क्लास में नहीं लिख सकते हैं, इतना कंफर्म है. क्यों? क्योंकि मेन क्लास में हम फंक्शन को कॉल करते हैं. ठीक है, कॉलिंग फंक्शन इज ऑलवेज इनसाइड द मेन क्लास, डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज आउटसाइड ऑफ अ मेन क्लास, और डेफिनेशन तो हमेशा मेन क्लास के बाहर ही रहती हैं. ठीक है, so these are the what the major elements of a user defined function. Correct. Then definition of function that must contain few things. First thing is function name. हमारे यहाँ प्रोग्राम में प्रिंट लाइन, ये जो प्रिंट लाइन है that is what a function name. Then function type, ये फंक्शन किस टाइप का है, जैसे ये इंटीजर टाइप का है, वॉइड टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, दैट डेटा टाइप शुड बी डिफाइंड. लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, यानी जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में जो पैरामीटर्स दिए गए हैं, ठीक है, दैट लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स इफ देयर देन वी हैव टू मेंशन, अदरवाइज यू कैन पुट वॉइड. वॉइड यानी क्या होता है? नथिंग. देन लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, देन फंक्शन स्टेटमेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट. जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, दैट इज व्हाट इंटीजर आई,
देन कुछ फॉर लूप्स या फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं, इसमें कुछ स्कैनफ फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इन ऑर्डर टू रीड द डेटा, करेक्ट. So these all are the 6 elements that are grouped and it will form a namely as a function header, that is the first 3 elements, and function body, that is the second 3 elements. यानी function name, function type, function parameter या फिर list of parameter, इसको हम क्या बोलते हैं, header. And the function body is nothing but the local variable declaration, function statements and return statements, correct. So these are the some of the points related to the definition of a function, ठीक है. तो ये हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू पूरा देख लिया है कि पैरामीटर्स क्या रह सकते हैं, जैसे इंटीजर भी दे सकते हो आप, फ्लोट भी दे सकते हो, डबल भी दे सकते हो, ठीक है. वी कैन प्रोवाइड द पैरामीटर्स ऑफ अ सेम डेटा टाइप, इसमें मिक्सिंग अलाउड नहीं है, ठीक है. देन फंक्शन बॉडी हैज सम ऑफ द parts, that is a local declaration that specifies the variable needed by the function statements that perform the task of the function, then the return statement. अगर यहाँ पे फंक्शन आपका इंटीजर है, यहाँ पे मैं अगर void की जगह पे int लिखता हूँ, then there is a need of a return type or return 0, correct, otherwise it will give you the error, ठीक है. So these are the some of the parts related to the function. We will see tomorrow the return values and their types, right. So tomorrow's lecture will be like that कि इसमें से हमारा जो सिलेबस जो है, सिलेबस में का हमने जो आज पार्ट डिस्कस किया, दैट इज व्हाट फंक्शन, नीड ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन, मल्टी फंक्शन प्रोग्राम्स एंड एलिमेंट्स ऑफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है. तो ये पूरा पार्ट हमने डिस्कस किया है. सेम पार्ट दैट विल आई प्रोवाइड थ्रू द वीडियो विथ एन एग्जाम्पल. यहाँ पे जो भी मैंने एक ब्रीफ नहीं बताया, बट ब्रीफ डेटा दैट वी कैन ऑल्सो हैव इन वन वीडियो. अलॉन्ग विथ दैट रिटर्न वैल्यू एंड देयर टाइप्स, फंक्शन कॉल, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड कैटेगरीज ऑफ अ फंक्शन. ये जो 4 टॉपिक्स हैं, रिटर्न वैल्यू एंड देयर टाइप्स एक टॉपिक, देन फंक्शन कॉल, फंक्शन डिक्लेरेशन ये 2 टॉपिक, और चौथा जो टॉपिक है दैट इज व्हाट कैटेगरीज ऑफ अ फंक्शन. ये चारों के चारों टॉपिक्स का एक मैं वीडियो आज बनाने वाला हूँ. टिल 4 o'clock or 5 o'clock it will be posted on YouTube and in your group also. Everyone have to view that video and we will discuss that part within a few minutes in tomorrow's lecture and then we will start the pointer, ठीक है. क्योंकि फंक्शन का बहुत सा पार्ट हमने पहले कवर कर लिया है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा रैपिडली लेना चाहते हैं, बिकॉज पॉइंटर कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द 6th यूनिट. तो उसके लिए थोड़ा हमें टाइम ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम कुछ पार्ट इसमें का जो है वो आज कवर कर लिया, कुछ पार्ट वीडियो के थ्रू कवर कर लेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे, एंड लेटर ऑन वी विल स्टार्ट इमीडिएटली द पॉइंटर कंसेप्ट, करेक्ट. एंड फाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग का भी पार्ट हम एक थोड़ा वीडियो के थ्रू ही कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, ठीक है. So that was about today's session. Thank you. Any difficulty?